قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل گفتگو ہم نے یہاں تمام کی تھی والمخلصون فی خطر عظیم. تمام کے تمام ہلاک تو ہوں گے، نجات انہیں ملے گی جو مخلص ہیں. لیکن جو مخلص ہیں ان کے لیے مشکلات مسلسل ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ فی خطر عظیم، ایک عظیم خطرے کا شکار. تو معصوم کی حدیث میں یہ کہہ تو دیا گیا کہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، عظیم خطرہ ہے، لیکن وہ خطرہ ہے کیا ہم قرآن میں دیکھ لیتے ہیں. شیطان جب نکالا گیا تو شیطان نے خدا سے عمر مانگی، کہا معبود میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے بدلے میں مجھے قیامت تک کی عمر دے دے. میں پوری تاریخ خلقت آدم نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں اور وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی عبادت کے مقابلے میں اجر کا تصور آ جائے تو خلوص نکل جاتا ہے، اور جب خلوص نکل جاتا ہے انسان مخلص نہیں رہتا ہے تو اجر کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. کیونکہ شیطان ہزاروں برس، لاکھوں برس، کتنے سال اس نے سجدے کیے یہ اختلافی ہے، لیکن اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ ایک لمبی مدت تک عبادت کرتا رہا. لمبی مدت تک عبادت کرنے والا شیطان جب خداوند تعالیٰ سے کچھ کہہ رہا ہے، انکار کے بعد نکالا جا رہا ہے، کہہ رہا میری عبادتوں کی قیمت تو دے دے. تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اپنی عبادتوں کا اجر شیطان چاہتا ہے، انسان نہیں چاہے گا اگر وہ خدا کا مخلص بندہ. خلوص شرط. دوسری بات، خدا نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھے عمر دیں گے، لیکن ہاں یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ کتنے دن زندہ رکھیں گے. دیکھیں خداوند تعالیٰ نے تمام معاملات اپنے پاس کیسے رکھے. کہا دیکھو ہم نے عمر دی. کہا پروردگارا ایک چیز اور بھی، اب میں جو ہے تیرے مخلص بندوں کو بہکانا چاہوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا.
सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। अब जो सिराते मुस्तकीम पर जा रहा होगा वही बहकाया जाएगा। हमारे इस सवाल का जवाब मिल गया ना। कल मैंने कहा था आलिम हलाक होगा, तमाम लोग हलाक होंगे, अमल करने वाले हलाक होंगे, नहीं हलाक होगा, मुखलिस नहीं हलाक होगा, लेकिन अजीम खतरे का शिकार है, क्योंकि मुसलसल उसकी शैतान से जंग है, मुसलसल उसकी नफ्स से जंग है। यानी शैतान से भी मुसलसल जंग, नफ्स से भी मुसलसल जंग, यानी एक अजीम खतरे में है, एक अजीम खतरे में। अब हमारे इस सवाल का जवाब मिल गया कि इतने बहके हुए हम क्यों हैं, इतने भटके हुए हम क्यों हैं। इसलिए कि उसने कहा हम सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाएंगे। मुखलिस नहीं कह रहा हूं कि अब जब सिराते मुस्तकीम पर बैठ गया तो खतरे अजीम में है, लेकिन मुखलिस वो है कि जो शैतान को शिकस्त दे दे और शैतान कामयाब ना हो सके। कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद मुखलिस नहीं रहा। और खुदा बंदे ताला ने जब इबादत की बात की तो अपने बंदों की तारीफ की तो कहा मुखलिसीन लहुद्दीन, ये अपने दीन में खुलूस रखते हैं। पर कुरान ने तो मुखलिसीन लहुद्दीन कहा। और मेरे पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बाजी तो मेरे मौला फरमाते तूबा लिमन अखलसा लिल्लाह, तूबा है उसके लिए, बुलंद मकाम उसके लिए, जन्नत नेमतें किसके लिए? लेमन अखलसा, जो मुखलिस हुआ। अच्छा मुखलिस हुआ, अच्छा मुखलिस, आप ये देखिए जितनी इबादतें करते हैं उसमें नियत शर्त है ना। नमाज पढ़िए बगैर नियत के तो नहीं है, रोजा रखिए बगैर नियत के नहीं है, हज बगैर नियत के नहीं है, खुम्स बगैर नियत के नहीं है, सारी इबादतें नियत के साथ। अच्छा नियत में भी क्या कहा जा रहा है? नियत तो लफ्ज का नाम नहीं, इरादे का नाम है, मगर हमारी नियत अक्सर लोगों की गलत। मैं नियत के फुतूर की बात नहीं कर रहा हूं, नियत की अदायगी की बात कर रहा हूं। नियत हमारी सबकी अक्सर गलत। बस क्या होता है कहा मैं नमाज पढ़ता हूं फजर की 2 रकअत। अच्छा फजर की वक्त तो इतनी आवाज भी नहीं होती, मैंने गलती की भाई, उस वक्त कहां ऐसी आवाज, मैं नमाज पढ़ता हूं फजर की। ये तो मगरिब तक हो सकता है या जोहर तक हो सकता है, भाई मैंने गलती के लिए माजरत कर ली। अब आप ये देखें बस जोहर की 4 रकअत वाजिब, सब कुछ सही, उसके बाद फुरबतन ये भी सही का थोड़ा गाढ़ा वाला हो जाए, इल्लल्लाह गलत, खत्म। इल्लल्लाह है ना, इल्लल्लाह अल्लाह से करीब होने के लिए। अब जो इल्लल्लाह का तो अल्लाह के अलावा सबसे करीब है, खुलूस कहां से रहा? अब पता चला इल्लल्लाह हो रही है तो मोहल्ले वालों के लिए हो रही है, दोस्तों के लिए हो रही है, पड़ोसियों के लिए हो रही है, रिकॉग्नाइज किए जाने के लिए हो रही है, इन तमाम लोगों के लिए हो रही है। जिनके लिए हो रही उन्हीं से ले लेना आज, है ना। क्योंकि कयामत के दिन कुछ लोग होंगे बोरी भर नमाजें होंगी, ट्रक भर रोजे होंगे, और हो सकता है कि छोटी मोटी बैंक या एक एटीएम खाली कर दिया होगा उसमें। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मांगेंगे, कहा कुछ नहीं, कहा इसलिए क्योंकि तुमने हमारे लिए कब किया है, जिनके लिए किया था उनसे मांगो। और उसके बाद जिनके लिए किया था उन्होंने दे दिया, शो ऑफ, है ना भाई। याद रखिए 2-3 मसाइल, हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आते हैं 2-3 मसला होता है, एक वीकेंड और एक शो ऑफ। शो ऑफ वैसे इंडिया पाकिस्तान में भी चलता है कि क्या हुआ भाई, हाँ खुदा करे जल्द से जल्द आप अपना मरकज बनाए। मरकज बनाना, आबाद रखना, घर तो अपना कभी नहीं खाली छोड़ता, खुदा का घर छोड़ दिया जाता है, मौला का घर छोड़ा जाता है। हाँ ईयरली तो हम विजिट कर लेते हैं, जैसे पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं या सालाना छुट्टियों पे जा रहे हैं। क्योंकि बसा औकात बाद लोग तो पूरे तकद्दुस और एहतराम का ख्याल करते हुए आ रहे हैं, तो पता चला है कि इस बारगाह में आ रहे हैं कि जिस बारगाह में जिब्राइल भी सलामी देता है और इजाजत लेके दाखिल होता है।